Alright students, now we'll be starting with the new exercise which is 7.3. Let us check the properties which is used in 7.3. Since 7.3 SSS already we have learned earlier theorem, and 7.5 also we have learned RHS congruency rule. So this is all we have learned, so I think so we have enough information to start 7.3. Let us understand 7.3 first and then we can start. And 7.3 it says triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on same base BC, and vertices A and D are on the same side of BC. Okay, now so many things are given, but reading skill is very important. So let us write one by one what we understand. First thing, triangle ABC and DBC are isosceles. Now if you first let me draw the diagram, because with the help of diagram only you can get everything. So first important thing in exam also, draw diagram and get answers from diagram itself. So it's A, B, C and your D, P. Okay, a diagram is given. Now automatically you will get the answer. Triangle ABC is isosceles. Now I understand, I believe most of you understand. Now make sure you keep your textbook with you. Might be possible I will keep only notebook in front. So first, what is given? Triangle ABC is isosceles and DBC is isosceles. Two things are given, ABC and triangle DBC is isosceles, right? This isosceles triangle. If you know ABC is isosceles means AB is equal to AC. AB is equal to AC. Similarly, if DBC is isosceles, DB will be equal to DC. This is the property of isosceles triangle. Okay. Now the next thing is given same page. Okay, all okay. Remaining is not important. Only these two things are important for the question, and to prove it is given in question itself. So to prove, there are four things asked: 1, 2, 3, and 4. I'm not writing. I'll do one by one. Make sure you write the to prove in exam. Now to prove is, first proof we have to prove triangle ABD. Triangle ABD congruent to triangle ACD. This we have to prove. So this how we can get. Okay, first we have to think ABD and ACD in these two triangles. We have to find the congruency and we can get the answer. We have to prove this ABD or ACD. डायग्राम में ही देखो ABD और ACD. अगर ये दो ट्राइंगल को देखोगे, खुद से आंसर दिख ही रहा है. अगर ABD और ACD में देखोगे, ये साइड और ये साइड है, और DB और DC भी इक्वल है, तो ये दो इक्वल. तो ABD और ACD में, ये दो ट्राइंगल में ऑलरेडी दो चीज इक्वल दिख रही है. सिंपल है. ABD और ACD में, ABD और ACD में दो चीज दिख रही है, 1 2, और यहाँ पे भी 1 2. और तीसरी चीज क्या है? AD कॉमन. तो पहला पार्ट आ गया. सिंपल, एकदम सिंपल. तो क्या स्टार्ट करें सम? ये रफ वर्क था. ओके, क्योंकि मैंने टू प्रूफ लिखा नहीं यहाँ पे. तो क्या लिखेंगे अभी? इन ट्राइंगल, जब भी जो प्रूफ करना था वही ट्राइंगल लेना होता है. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. अब ये दो ट्राइंगल में क्या दिख रहा है वो लिखना है. इन ट्राइंगल ABD एंड ACD क्या दिख रहा है? AB और AC इक्वल है. AB और AC इक्वल है. ये क्या था? गिवन था. और DB और DC भी इक्वल है. तो इसलिए मैंने ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाया कि दोनों के लिए हो जाए. ओके, ये चीज दिया. और कॉमन क्या है? AD इज कॉमन. सो AD इज कॉमन. सो AD इज कॉमन. ओके, सो विच प्रॉपर्टी? तीनों साइड ही है, तो बाय साइड 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 ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पूछा है राइट, तो इतना कुछ आगे सोचना ही नहीं है. अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. ये पूछा है. ये रफ वर्क है फिर से. ओके, यहाँ पे लिखना था. ये पूछा है हमें ABP और ACP पूछा है. तो अभी ABP ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ABP और ACP. अब ये दो ट्राइंगल में हमें चाहिए तीन चीज. ये बड़े ट्राइंगल में और ये बड़े ट्राइंगल में तीन चीज. अभी ये बड़े ट्राइंगल में एक चीज ये है, दूसरी चीज क्या है? ये बीच में कॉमन है, तो दो ही चीज दिख रही है. अगर बड़े ट्राइंगल में देखूंगा, ये अंदर का काउंट नहीं होगा बड़े ट्राइंगल में भी. ये बड़ा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल. अभी मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया ये दो छोटे ट्राइंगल इक्वल है. अगर ये छोटे ट्राइंगल इक्वल है, इसके हर एक पार्ट इक्वल है. कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैंने इसको अभी जस्ट प्रूफ किया ये कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मतलब इसके हर एक पार्ट इक्वल होंगे. तो मैं बोल सकता हूँ ये छोटे ट्राइंगल का ये पार्ट भी इक्वल ही होगा.
ओके, तो इसको बोलो एंगल 1 एंगल 2, यहाँ पे लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ये इसलिए लिखा क्योंकि यूज होगा, बड़े ट्रायंगल में यूज होगा। तो बड़े ट्रायंगल में क्या है, 1, दूसरा ये छोटा पार्ट 2 और तीसरा कॉमन 3, तो साइड एंगल साइड से आ जाए, इसलिए मैंने ये लिया। ओके, तो बड़े ट्रायंगल में अगर मैं लूंगा तो ये एंगल ले लूंगा CPCT से। कैसा आएगा, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, तीन चीज क्या है, AB इज इक्वल टू AC विच इज गिवन, राइट। AB और AC इक्वल है, ये गिवन है। फिर कॉमन लाइन AP इज कॉमन, और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबाव। और CPCT से लिख सकते हो या प्रूव्ड अबाव लिख सकते हो, क्योंकि मैंने लिख लिया। अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे CPCT लिख देना। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, ये बड़े ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। ये बड़े ट्रायंगल के बारे में सोचो। ओके, तो साइड एंगल ये कॉमन, साइड एंगल ये कॉमन, तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा बाय SAS ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। पर अभी लेट्स सी थर्ड पार्ट क्या पूछा है, थर्ड पार्ट पूछा है AP बाइसेक एंगल A एज वेल एज एंगल D। ओके, थर्ड पार्ट में फिर से डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसमें फिर से। सो लेट्स सी द डायग्राम अगेन। ओके, डायग्राम एग्जाम में एक ही बार बनाना है, पर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 2 बार बना रहा हूँ। ये D है, ये P है। अभी थर्ड पार्ट क्या बोला है, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक कर रहा है एंगल A को। ओके, ऑलरेडी एंगल A को बाइसेक कर रहा है तो वो D को भी बाइसेक करेगा। AB बाइसेक एंगल A एज वेल एज एंगल D। मतलब बाइसेक का मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट। एंगल A के 2 इक्वल पार्ट ऑलरेडी है, अभी जस्ट प्रूव किया था। AP अगर एंगल A को बाइसेक कर रहा है तो वो D को भी बाइसेक करेगा। D के भी 2 इक्वल पार्ट, हमें ये प्रूफ करना है ये भी इक्वल होंगे, 3 और 4 भी इक्वल होना चाहिए एज एंगल D। एंगल D के 2 पार्ट क्या है, 3 और 4, हमें प्रूफ करना है ये दोनों भी इक्वल है। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में आंसर लाया था, जो सेकंड पार्ट में क्या लाया था आंसर, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, और फर्स्ट पार्ट में लाया था ये ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। तो इसको इक्वेशन देता ना, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। आगे पीछे जो प्रूफ किया वहाँ पे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बड़े ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल माइनस करेंगे, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, 2 - 1, बड़े में से छोटा निकल क्या आएगा, ये पूरे ट्राइंगल में से ABP में से ये माइनस करना है ABD। पहले सॉल्व लिख लेता हूँ, ABP माइनस ABD ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACP माइनस ट्राइंगल ACD। ओके, अब देखो ABP में से ABD निकालना है, ABP में से ये ऊपर का निकालना है। अब ये पूरे ट्राइंगल में से ये मैंने काट दिया तो क्या बचेगा, ये नीचे वाला ट्राइंगल DBC या DBP कॉन्ग्रुएंट टू, फिर सिमिलरली इससे ये माइनस करना है, बड़े ट्राइंगल से ये माइनस कर दो, ये क्या है नीचे वाला ट्राइंगल DCP। DBP लिखा तो यहाँ पे DCP लिखना जरूरी है, सीक्वेंस जरूरी है, DCP। अगर ये 2 ट्राइंगल इक्वल है, हर एक पार्ट इक्वल होंगे तो 3 और 4 भी इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज व्हाट, AP इज द परपेंडिकुलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसमें 4 पार्ट है, 4 मार्क पूछ सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब यहाँ पे 2 चीज पूछिए, AP इज परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब AP 90 पूछा है, मतलब एंगल 5 को 90 प्रूफ करना है, तो एंगल 5 90 डिग्री। और बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट, AP BC के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है, मतलब और एक चीज क्या पूछा है, PP इज इक्वल टू PC। ये सब 2 प्रूफ में लिखना था। ओके, ये सब मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये सब 2 प्रूफ में ही लिखना है हमें। ओके, यहाँ पे भी अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
ये सब आगे टू प्रूफ में लिखना, जिसको मैं सर्कल किया उसको आगे ही लिखना है, बाकी तो ये सब क्वेश्चन मैंने कॉपी किया, इसको एक्सप्लेन करना है टू प्रूफ में लिख के। ओके, जो भी सर्कल किया है टू प्रूफ में लिखना, पर इजी हो समझने में, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी ये दो चीज प्रूफ करनी है, 90 डिग्री और बीपी और बीसी। अभी 90 डिग्री कैसे होगा, लेट्स से ये 6 है, ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो 5 और 6 इक्वल ही होगा। बड़े बड़े ट्राइंगल ऑलरेडी प्रूफ किया सेकंड पार्ट में कि इक्वल है, सेकंड पार्ट में, तो 5 और 6 इक्वल होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 5 + 6 क्या होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है 180 डिग्री होता है। अब दोनों इक्वल है, 5 + 5 180 डिग्री, तो 2 एंगल 5 180 डिग्री, तो एंगल 5 = 90, तो 90 आ गया। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड हो गया, तो 2/181.2 क्या होता है 90, तो एंगल 90 आ गया। और ऑलरेडी ये बड़े बड़े ट्राइंगल इक्वल है, ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल, तो इसके हर एक पार्ट इक्वल होंगे। बीपी = पीसीबी होगा बाय सीपीसीटी। ओके, so this is what the sum is. Again rewatch the video again and again to get it more perfect, but it's very important sum, so make sure you practice this properly. Now let us see the next question. Okay, so the second question is AD is an altitude. इसमें डायग्राम दिया नहीं है, तो रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रीडिंग स्किल से ही आएगा। AD अल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस, तो ABC ट्राइंगल में AD अल्टीट्यूड है, ABC आइसोसेलेस मतलब ये दोनों इक्वल, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब D हाइट हो जाएगा, AD हाइट हो जाएगा, आइसोसेलेस मतलब बेस भी इक्वल होता है, राइट। प्रॉपर्टीज बहुत है आइसोसेलेस की, हमें दो अभी गिवन क्या है, ABC आइसोसेलेस, तो AB = AC, अल्टीट्यूड है तो एंगल 1 = 90 डिग्री, या 1 नाम दे दो इसको। टू प्रूफ AD बाइसेक्स BC, और दूसरा चीज क्या पूछा है, AD बाइसेक्स एंगल A। अब AD बाइसेक्ट BC का मतलब क्या होगा, AD है, AD जो है क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BC के दो इक्वल पार्ट, मतलब प्रूफ करना है BD = DC, और AD बाइसेक्ट एंगल A का मतलब AD एंगल A के दो इक्वल पार्ट कर रहा है, तो एंगल 2 = एंगल 3 भी प्रूफ करना है, तो एंगल 2 = एंगल 3। AD बाइसेक्ट एंगल A मतलब एंगल A के दो इक्वल पार्ट, ये रीडिंग स्किल से ही समझ में आएगा। रीडिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स रीडिंग है, ये आना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों प्रूफ करना है हमें। अब BD = DC कैसे आएगा, कौन से ट्राइंगल में BD और DC है, ये दो ट्राइंगल, तो ये दो ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं। प्रूफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये तो प्रूफ करना है, ये दिया नहीं है। ओके, ये प्रूफ करना है, इसको मत लेना आंसर में। अभी ये तीन चीज क्या दी हुई है, ये राइट एंगल है यहाँ पे दोनों के पास, यहाँ 90 यहाँ भी 90 होगा, अल्टीट्यूड है ना, तो ये 90 ये भी 94 नाम दे दो। एंगल 1 = एंगल 2 एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 90 डिग्री। AB = AC गिवन है ये। और क्या होगा तीसरी चीज, AD कॉमन, AD इज कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड कॉमन, सो बाय RHS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके हर एक पार्ट इक्वल होंगे, तो CPCD से एंगल 2 = एंगल 3 भी होगा बाय CPCT। अगर ट्राइंगल इक्वल है तो उसकी हर एक चीज इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एकदम ओवरलैप हो रहा है, तो हर एक पार्ट उसके इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 2 = एंगल 3 बाय CPCT। ये लिखना बहुत जरूरी है, जो है हर चीज में ब्रैकेट में रीजंस लिखना बहुत कंपलसरी है। इफ यू आर नॉट राइटिंग द रीजन, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। यू हैव टू राइट द रीजन वाई, क्यों। ओके, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Diagram is already given in the question, so I will draw the diagram first. Okay, now first thing, in diagram only many things are given, so just copy the diagram properly. Okay, P Q N R,
ओके, अभी दिया हुआ ये इससे इक्वल है, इससे मतलब इसका मतलब ये इससे इक्वल है और ये छोटी लाइन से इक्वल है। ये सिर्फ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन टू साइड ए बी एंड बी सी, मीडियन ए एम एंड बी एम और ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल साइड पी क्यू एंड पी आर मीडियन। सब चीज दी हुई, जो दी लिख देते, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन और ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये तीन चीज दी हुई है। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी एम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, ट्राइंगल पी क्यू एन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अभी क्या दिया हुआ है इसमें, मीडियन ए एम मीडियन है। ओके, इसके बारे में बाद में आता है, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर जो इजी है। ए बी एम और पी क्यू एन प्रूफ करना है। ए बी एम और पी क्यू एन, अगर देखोगे डायग्राम में आंसर लिखा है, ये दो छोटे ट्रायंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला, साइड साइड साइड, ये भी साइड साइड साइड। तो भाई साइड 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 पहला पार्ट तो डायरेक्टली हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब क्वेश्चन ही कॉपी करके लिख देना है, आंसर आ गया। बी एम इज इक्वल टू क्यू एन और ए एम इज इक्वल टू पी एन, ऐसे लिख देना है। यही सब गिवन है, पूरा गिवन था। तो बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। अभी सेकेंड पार्ट में थोड़ा डिफरेंस है, अभी फिर से देखते हैं क्या करना है उसमें। डायग्राम बनाते हैं फिर से ताकि समझ में आए करना क्या है। ए बी सी पी क्यू आर ए एम पी एम, ये तीन, ये से और ये लास्ट वाला। नाउ व्हाट इज आस्क, क्या पूछा है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर से, ये पूछा है। दिस इज आस्क हाउ टू प्रूव दिस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये बड़े बड़े ट्राइंगल में सिर्फ एक ही चीज इक्वल है, एक और ये एक, और कुछ इक्वल नहीं है। ओके, ये आधा इक्वल है, बट इट इज वन थिंग इज गिवन इन क्वेश्चन कि ए एम एंड पी एन आर मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। कोई भी ट्राइंगल हो, अगर ए बी सी, इफ ए एम इज मीडियन, अगर ए एम मीडियन हो, मीडियन मतलब क्या होता है, ये लाइन जो है ट्राइंगल को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है। इट डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल एरिया, दैट इज नोन एज मीडियन। एंड ऑल्सो base also will be equal. Whenever you are making a median, it will make the base in two equal parts. अगर ऐसा ट्राइंगल होता A B C, तो मीडियन क्या करता, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता और ये दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करता। दो चीज करता है मीडियन, हमेशा दो चीज करता है। मीडियन क्या करता है, बेस को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है और इसको दो इक्वल एरिया भी दो हिस्से में हो जाते हैं। बेस भी दो हिस्से में होते हैं और एरिया भी दो इक्वल पार्ट में हो जाते हैं। तो वैसे अगर ये मीडियन है तो ये बेस इक्वल होगा। अगर ये बी एम और क्यू एन इक्वल है, आधा आधा इक्वल है, तो पूरा पूरा भी इक्वल होगा। क्योंकि अगर ये मैं बता दे, मीडियन का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल हिस्से, ये भी दोनों इक्वल हिस्से, मैं बोलूंगा पूरे पूरे हिस्से भी इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एज ए एम एंड पी एन आर मीडियन। ए एम और पी एन मीडियन है। ऑल्सो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन दिया हुआ है, तो अगर हाफ आर इक्वल तो होल भी इक्वल ही होगा। आधा आधा, अगर आधा इक्वल है तो पूरा पूरा भी इक्वल ही होगा। आधा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ है ये ए एम मीडियन है, मतलब ये दो इक्वल हिस्से, मतलब ये जो साइज का ये भी सेम साइज का, ये जो साइज का वो भी ये सेम साइज का, मतलब पूरा पूरा भी इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ये मीडियन था। एज होल आर इक्वल, एज हाफ इज इक्वल तो होल ऑल्सो विल बी इक्वल। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल है, तो उसका ये एंगल भी इक्वल होगा। अभी जस्ट प्रूव किया ना, ये ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका ये एंगल भी इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो कैसे आएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, so practice this very simple sums, but reading skill is very very important. Now next question is, diagram is not given, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. triangle ABC का दो altitude है। अभी altitude एक ही triangle दो altitude कैसे बनेंगे,
दिया हुआ ये BE एंड CF आर अल्टीट्यूड. तो BE एक अल्टीट्यूड है. कीप योर टेक्स्ट बुक विद यू सो टू अंडरस्टैंड. BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स. BE इज अल्टीट्यूड एंड CF ऑल्सो अल्टीट्यूड मतलब हाइट. बोला कि यूजिंग RHS प्रूव दैट ABC इज आइसोसेलेस. गिवन क्या है? BE and CF are altitudes. Okay, angle 1 और angle 2 90 डिग्री. angle 1 equal to angle 2 is equal to 90 डिग्री. दोनों 90 डिग्री है. अब प्रूफ करना है ABC isosceles. What is mean by isosceles triangle now? If ABC is isosceles, it means AB is equal to AC प्रूफ करना है. AB is equal to AC. RHS यूज करके प्रूफ करना है. इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि RHS यूज करके सॉल्व करो. तो ये नीचे वाले ट्राइंगल लेने होंगे कि RHS यूज करने के लिए. राइट एंगल, इसमें राइट एंगल है और ये हाइट टू इक्वल अल्टीट्यूड्स भी दिया है. तो B इक्वल टू CF भी है. B इक्वल टू CF. तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ओके आ जाएगा उससे ही. तो अगर नीचे के ट्राइंगल लेते, ये नीचे वाला ट्राइंगल और बाजू वाला नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला दूसरा वाला ये. तो ये ट्राइंगल कौन सा है? BFC. दूसरा कौन सा? अगर मैं BFC लूँ, यहाँ पे क्या लूंगा? CEB. सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. CEB. तीन चीज क्या है इसमें दोनों ट्राइंगल में? ये दोनों, इसके पास भी एंगल 90 डिग्री. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल सेम ही होता है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल, इसको भी एंगल 1 ही बोलो. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री. फिर BE इज इक्वल टू CF. altitude are equal, it is given, or we can write directly it is given, don't write that much. equal लिख दो या altitude B is equal to CF. B equal to CF के अलावा क्या है? BC कॉमन है. ये ट्राइंगल में BC आ रहा है और ये नीचे वाले ट्राइंगल में BC आ रहा है. BC is common. So by RHS triangle BFC is congruent to triangle CEB. ओके, तो मैंने RHS से प्रूव कर दिया. तो बाय CPCT से क्या बोल सकता हूँ? एंगल B और एंगल C इक्वल होगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. अगर ये पूरा ट्राइंगल ये इससे इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा. राइट? अगर ये पूरा ट्राइंगल इक्वल है तो इसके हर एक पार्ट इक्वल होंगे. एंगल B और एंगल C इक्वल होगा. तो एंगल B इक्वल एंगल C. अगर एंगल इक्वल है, अभी जस्ट आगे सीखे थे दूसरी एक्सरसाइज में कि अगर एंगल इक्वल की साइड भी इक्वल होंगे तो इफ एंगल्स आर इक्वल कैन आई से AB विल बी इक्वल टू AC. हियर आई कैन राइट आइसोसेलेस triangle property. Okay, now the last question, fifth one. Let us see that. Fifth question में क्या दिया हुआ है? ABC is isosceles. Again it is given it is isosceles. ABC. So given में लिख दो AB is equal to AC. ये दिया हुआ है. ठीक है. AP is perpendicular to BC. डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम रीडिंग स्किल चाहिए. AP परपेंडिकुलर मतलब एंगल 190 डिग्री है. एंगल 190 डिग्री 1-2 बोल दो या 1 कुछ भी चलेगा. राइट? एंगल 190 डिग्री. शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है. तो ये भी इजी है, डायरेक्ट आ जाएगा. एंगल B इक्वल टू एंगल C पूछा है. कैसे आएगा? दो ट्राइंगल है, क्या चिन्ह दीजिए? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कॉमन RHS प्रूफ. ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC. एंगल 2 भी बोल दो. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख दो. और AB इज इक्वल टू AC. दिस इज गिवन. और AP कॉमन. Therefore, by right angle hypotenuse side by RHS triangle APB is congruent triangle APC. Okay. ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर उसके ट्राइंगल का उसके हर एक पार्ट इक्वल होंगे तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT. Okay. So I believe you have understood this video, but very important thing to practice without seeing the solution. Alright, thank you.